हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में बिहाफ ऑफ सिल्वर बेल्स CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल we warmly welcomes to all the students in online classes. Myself, I am Dr. A. Ajgami. So we already started chapter number 15, that is biodiversity and its conservation, and this is the lecture number 15.3. Here we complete the species area relationship, that is the nothing but another point to be given in our book, and the importance of species diversity into the ecosystem, and we today learn about the loss of biodiversity, and also we learn about the causes of biodiversity loss और biodiversity loss होने के कारण क्या क्या है. So first of all, I will explaining you about the species area relationship. So that is the South America jungles. The German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, they provide the species area relationship which shows the richness of species to be increased with related to area can be increases, कि जैसे एरिया बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, हर कोई स्पीसीज ग्रो करती है, तो इसको हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में लेते हैं. एंड वाई वी प्लॉट द ग्राफ, ऑलवेज बी ग्राफ इज कम इनटू द नथिंग बट रेक्टेंगुलर पैराबोला में आएगा वो ग्राफ. सो हियर द log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, where the s is the species richness, a is the area, z is the slope of line or regression coefficient, and c equals to called y intercept. वो क्या है? y intercept. तो हमेशा इन शॉर्ट हम कहें तो स्पीसीज हमेशा रीच मिलती है, जैसे एरिया बढ़ता है वैसे स्पीसीज रिचनेस भी क्या होती है, बढ़ती है. एक्चुअली कहने का मतलब ये है, तो डायरेक्टली द स्पीसीज इज रिलेटेड विद एरिया. ओके, सो ये ग्राफ ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी वहाँ पर बढ़ती रहती है. बट इट इज़ नॉट इन ट्रू इन ऑल केसेस, बट इन सेम स्लोप will comes into a small areas. For example, if you see in a book, then you book in a find that there is the ecologist have discovered that is the z line and range of z line का जो range है, और वो range कितने बीच में है, this is around, the range is around between nothing but that is between 0.1 to 0.2, and this range is हम उसमें सेम ग्राफ मिलेगा. वाई वी गेट द सेम ग्राफ, बिकॉज दिस ग्राफ इज सेम. व्हेन वी प्लॉट दिस ग्राफ वुड बी सेम. वाई इज इट सो? क्योंकि वो कौन से एरिया का मिलता है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स इन ब्रिटेन, देन बर्ड्स इन कैलिफोर्निया एंड मॉलुस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट. तो ये ऐसे छोटे ग्राफिकल एरिया है जहाँ पर ये कंटिन्यूस मिलता है. Otherwise, we get in a larger areas in a which pattern stepwise. We get stepwise graph. तो ये stepwise ग्राफ क्यों मिलता है? उसका रीज़न है कि जैसा एरिया बढ़ता है तो 0.6 to 1.2 रेंज कहाँ पे आती है? The entire countries you will be find. कोई भी कंट्री का आप डेटा ले लो, then you find the stepwise graph, because there are the several factors, seasonal factors and other factors to be affected, not only area. क्योंकि एरिया एक लिमिट है. चलो एरिया बढ़ता है तो ऑर्गेनिज्म रिचनेस भी बढ़ती है, ओके, बिकॉज दे हैविंग गेटिंग द मोर एक्सपोजर. बट दैट इज नॉट ओनली वन फैक्टर that could be measure a increase a population, but that is the important factor, that's why the population can be increases. तो ये ग्राफिकल डेटा प्रेजेंटेशन है, पैटर्न है कि सीधा रिलेशनशिप किसका है, स्पीसीज से सीधा रिलेशनशिप है उसके एरिया का और उसके एनवायरनमेंट का. ये स्टेप बाय स्टेप मिलने का रीज़न क्या है? इफ़ वी टेक द कंट्री, द होल कंट्री, तो उसका 0.62 क्या मिलेगा हमको जनरली, दैट इज़ वी गेट नथिंग बट 0.6 to 1.2 के करीबन हम इसको ले जाएंगे. देन व्हाट विल बी हैपन, तो वहाँ पर स्टेप वाइज मिलेगा क्योंकि सीजनल चेंजेस भी आएंगे. तो दैट इज़ नॉट मीन द ओनली एरिया कैन बी डायरेक्टली इफेक्ट. एरिया कैन डायरेक्टली इफेक्ट एज एरिया इंक्रीज, स्पीसीज इज इंक्रीज, बट नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस. फ्लक्चुएशन भी आ सकता है.
Now, what is the importance of species diversity to the ecosystem? So while we are explaining this point, then we already know and notice the species. So several experiment we can be explaining on that. If you go to the page number 263 in your book, then paragraph number 2, the study to be given by the David Tillman is long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answers. Tillman found the plot with the more species showed the less year-to-year variation in the total biomass. He also showed that this is the experiment increased diversity contribute to higher productivity. Diversity is much more important to all aspects. Ecosystem चलाने के लिए diversity richness होना जरूरी है. Okay, तो another point में हम डेविड टिलमैन ने ऐसा कहा है कि भाई उसने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट स्टडी किया एंड ही फाइंड दैट हर प्लॉट में उसने क्या देखा, शोज द ईयर्स टू ईयर्स द वेरिएशन इन द बायोमास इज टू बी इंक्रीज एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ग्रोइंग द प्लांट्स. और ये बायोमास वेरिएशन क्यों आता है, हाउ डज द बायोमास वेरिएशन टू बिकम? उसका रीजन ही यही है. इफ वी ग्रो मोर then reproduction can be occur, mutation can be occurs by a sexual mode of reproduction and variation to be increased. इसके अलावा there are the several experiment also over there. The second para in that in a wood Western Ghats ecosystem to be less functional in one of its tree frog species is lost forever. How is quality of life is affected? कि वेस्टर्न घाट में उसके फ्रॉग अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, देखो द स्पेशली तो इसका सीधा अफेक्ट किस पर पड़ा. सो नाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड इफ इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ अंट ऑन द अर्थ. तो ये क्वेश्चन है कि जैसे हैबिटेट लॉस होता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, देयर आर द टू मैनी ऑर्गेनिज्म कैन बी लॉस. ओके, so that could be important in thing. So let's we understand the loss of biodiversity. अभी कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है. So we understand according to the IUCN International Union for Conservation of Nature 2004, according to them we can be plot the data कि कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुए. See, there are 2,000 species of native birds, 784 species including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 of plants in last 500 years. तो IUCN का डेटा क्या कहता है कि there are the 2,000 species of bird to be last 500 years में क्या हुआ है. 200 species of birds can be lost. उसके अलावा देखें तो एनिमल स्पीसीज में कितना और लॉस है. दीज आर द नथिंग बट 784 स्पीसीज, जिसमें क्या है, देर आर नथिंग बट 338 वर्टिब्रेट्स, देन वी टॉक अबाउट देर आर 359 इनवर्टिब्रेट्स, then we talk about there are 87 plant species. तो इतना क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है. ओके, इसके अलावा इफ यू गो then the last 20 years alone have witnessed to disappear. इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक लॉस हो चुके हैं. तो फॉर एग्जाम्पल रिसेंट कौन एक्सटेंड हुआ है, डोडो, एक तरह का और कुछ नहीं है, डक है. फिर गुगा, एक तरह का हिरन, हाइलेकाइन जो ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सी काउ, ये वाटर में रहने वाला एनिमल है, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ बाली, जवान एंड कास्पियन टाइप ऑफ टाइगर्स, ये भी क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्टेड हो चुके हैं. और लास्ट 20 ईयर्स में क्या हुआ है, देयर आर द 27 स्पीसीज ऑफ अनदर कैन बी डिसअपियर. सो हम जिस तरह से जा रहे हैं वैसे स्पीसीज लॉस बहुत हो रहा है. होल डेटा कैन बी गिवन इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यू गो थ्रू द पेज नंबर 263 इन अ बुक. देन another data to be also mentioned there,
there are how many species up till now to be at the point of extinction, that is 1500-500 species of worldwide facing the threat of extinction. अभी 15,500 जो स्पीसीज है वो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर है. इसके अलावा द प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड्स एंड 23% ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म इंक्लूड वर्ल्ड फेस द थ्रेटन ऑफ एक्सटिंक्शन. ये सारे डेटा बुक में मौजूद है, आपको इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस डेटास. ओके, एंड द another point you can be mention in your mind, that is the difference in the rate of current species extinction. पहले 100 था, अभी क्या चल रहा है 100 to more than 1000 time. So day by day this loss is increased and we not stopping over there. तो टोटली बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्टेड हो जाएगी. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज? द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज इज हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन. वी आर यूजिंग टू मच ऑफ लैंड. कॉजेज का मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के मुख्य कारण क्या है. तो मुख्य कारण आप सबको पता ही है जनरली. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके लिए सीधी सी बात है, वी आर यूजिंग फॉर too much land for agriculture purposes, too for our development projects, urbanization, and we lost for agriculture also. The lots of range of forest we can be lost. Now there are 14% earth surface is 14% is totally cover of, कितना था पहले 14% forest था. Now it is up to only 6%. अब इंडिया का भी फॉरेस्ट रेशियो क्या होना चाहिए? देर इज वेरी मच ऑफ लेस, 16 to 70% है, वो होना चाहिए एक्चुअली 30% एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया. बट टोटली ड्यू टू क्रॉप रोटेशन एंड अनदर प्रोजेक्ट्स, हाईवेज एंड ऑल दिस प्रोजेक्ट्स, वी ऑल्सो लॉस द टू मच ऑफ एक्सप्लोटेशन विद लॉस ऑफ, हमने हैबिटेट लॉस कर दिया, जिसके कारण बहुत सारी स्पीसीज क्या हो चुकी है, टोटली वैनिश्ड हो चुकी है. इसके अलावा देर इज अ एग्जाम्पल दिए इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट द ह्यूज कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट और अर्थ. तो उसमें फॉर सोयाबीन के लिए और ग्रासलैंड के लिए वो फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया है. तो जिसके कारण बहुत सारे स्पीसीज की क्या हो चुकी है, हैबिटेट लॉस, एंड दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. ओके, नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि गांधी जी ने कहा था कि द अर्थ इज सफिशिएंट फॉर द टू ओवरकम द नीड्स बट नॉट ग्रीड्स. ग्रीडी के रीजन के कारण हमने क्या किया है, वी आर लॉस टू मैनी. फॉर एग्जांपल एलिफेंट फॉर देयर टस्क्स. एलिफेंट को क्यों लॉस किया, फॉर टस्क के लिए. उसके अलावा 500 ईयर में हमने स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजियन जो खाने के लिए यूज होता है, तो उसको हमने क्या किया, रख दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो ओवर एक्सप्लोटेशन, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल कैन बी ऑल्सो हंटेड फॉर देयर बॉडी स्किन. उनकी बॉडी स्किन के लिए उसको हंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टू मैनी राइनोज फॉर बी किल फॉर व्हाट, देयर शेल, जो सेल बनाने के लिए उसका यूज होता था. अब एलियन स्पीसीज समटाइम्स ऐसा भी होता है, देयर इज नॉट कैन बी द मेड कॉजेज ऑल्सो, certain case causes also natural also. तो alien species invention this is also natural cause. तो उसके एग्जाम्पल में वेट विल बी टेक कि कोई भी एलियन स्पीसीज आ जाती है उधर, तो वो जो वहाँ की स्पीसीज है उसको क्या कर देती है, लॉस कर देती है. सी द वन एग्जाम्पल इज गिवन इन नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू एक्सटेंशन ऑफ एन इकोलॉजी यूनिक असेंबलिंग ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चीचिड फिश. के नाइल पर्च नाम की, पर्च नाम की जो फिश आ गई, तो उसकी वजह से, पर्च फिश आने की वजह से क्या हुआ, चीचिड फिश की 200 स्पीसीज क्या हो गई, लॉस, क्योंकि उनके लिए फूड नहीं बचा, वो उनके ऊपर टोल. और अनदर एग्जांपल एलियन स्पीसीज का है गैलापागोस आइलैंड. वहाँ पे टॉर्टोइस थे, एबिंगडन द बिगर टॉर्टोइस, लेकिन गोट आने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, एलियन स्पीसीज आने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वो कछुए या तो एक्सटिंक्शन हो गए या तो बहुत सारे वहाँ से हैबिटेट लॉस कर गए. ओके, देन एग्जांपल है लेंटाना एंड वाटर हायंथिस. लेंटाना एंड वाटर हायंथिस. लेंटाना ये ऐसा प्लांट है
that it's a one type of shrub that can be grow in a which region the adverse conditions, सीवेज लाइन होती है, कहीं पे भी होते हैं तो lantana ग्रो हो जाता है, एंड दिस lantana कैन बी ओवर एक्सप्लोइटेशन, उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे प्लांट स्पीसीज क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। उसके अलावा आइकोर्निया है, आइकोर्निया और वाटर हाइंथिस जिसको बोलते हैं, वो जब पूरे तालाब में, और इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बे ऑफ बंगाल, पूरे बंगाल में फैल गया है, वो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें, वो दूसरे प्लांट को ग्रो होने देता नहीं है। तो एलियन स्पीसीज आने की वजह से भी कोई स्पीसीज वहाँ की होती है वो क्या हो जाती है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर कॉज, बट दिस इज द मेन कॉज जिसकी वजह से हैबिटेट क्या होता है, लॉस होता है, और जिसकी वजह से डाइवर्सिटी भी क्या होता है, लॉस होता है। उसके अलावा एलियन स्पीसीज के ये एग्जांपल है को एक्सटिंक्शंस। अब को एक्सटिंक्शन में फॉर एग्जांपल द होस्ट फिश कैन बी बिकम एक्सटिंक्ट, द अदर पैरासाइट कैन ऑल्सो एक्सटिंक्टेड। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एक्सटिंक्ट होने के कारण उसके ऊपर डिपेंड सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वन ट्री है, उसके ऊपर जो भी बर्ड्स है, वो ट्री को काट दो तो वो बर्ड भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो कि भाई एक का लॉस हुआ तो दूसरा लॉस हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, को एक्सटिंक्शन कहते हैं। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो दिस इज द वेरी इजी पॉइंट्स, यू कैन गो थ्रू दैट, एंड ओनली कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज टू बी रिमेनिंग फॉर दिस चैप्टर। तो ये पॉइंट आप लेना, इट्स वेरी इजी to understand that one, okay? Or any queries you can call to me or you can come to school. Thank you.